Okay. Okay. So in the last class we talked about the concept of LCM. हम लोग basically काम कर रहे थे time और work के अंदर, right? What is time and work problem? In the scenario we have seen different types of question that might be asked, and if the single person can do a task, suppose for an example, if I tell you A can complete the work in n days, the entire work is completed, so I write 1W. Then in one day, what amount of the work would be completed? Can you tell me? Good afternoon, Himanshu ji. Yes, it should be 1 by n that we have learned in the last class. 1 by n of the work would be completed. And the most important thing that we have noted in the last class is we can add or subtract work done for fixed duration. तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि वो फिक्स ड्यूरेशन तक पहुंचना. सर आई ओके ओके जस्ट मैसेज मी मुस्कान, प्लीज मैसेज मी. मुझे आप एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालना, तो मैं इसको नोट करके रखूंगा. ठीक है. ओके दैट्स फाइन. बट व्हाट वी हैव लर्न कि हमारे फिक्स ड्यूरेशन में हमें काम करना है. फिक्स ड्यूरेशन को हमने एक बार दिखा था कि वी कैन टेक अबाउट 1 day और वी कैन टॉक अबाउट एलसीएम नंबर ऑफ डेज. ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्यों इजी था? बिकॉज वहां पर फ्रैक्शंस नहीं आते थे, right? At that time the calculation become easy because we are not playing with the fractions. So as one student has suggested, we should do 1 or 2 questions based on it. Suppose if I give you three numbers and I ask you to find out LCM of these three numbers. Your task is to give me the LCM of these three numbers. तो LCM निकालने का तरीका हमने क्या सीखा था? जो भी नंबर्स है उनको लिख लो. 4, 9, 24. Start with the smallest prime possible which divide at least one of the number. तो मुझे पता है 2 डिवाइड करता है, कल स्टार्ट विद 2. डिवाइड करूंगा तो ये 2 होगा. 9 डिवाइड नहीं होता है तो राइट 9 एज इट इज, ये हो जाएगा 12. अगेन आई कैन डिवाइड बाई 2, so राइट 2. 2 से डिवाइड किया तो 1. 9 डिवाइड नहीं है तो एज इट इज, ये हो जाएगा 6. अगेन आई कैन डिवाइड 6 एटलीस्ट बाई 2, सो मैंने 2 अगेन लिखा. 1 9 3. The next prime that I can see is the 3. So it is 1. 3 से डिवाइड किया 3. 3 से डिवाइड किया तो 1. अगेन आई कैन गो फॉर 3 एंड एट द एंड मुझे तीनों जगह पे 1 आ जाएगा. जैसे आपको ये मिल जाता है, आपका एलसीएम क्या होगा? जो भी नंबर्स आप लिख रहे थे साइड में, उनका प्रोडक्ट इज नथिंग बट योर एलसीएम. Okay, so it is 3 2s are 6, 3 2s are 6, that is 36, and 36 2s are, answer is nothing but 72. Okay, I just forgot the name. आशुतोष जी, यहां पर हमने स्टेप्स क्या किए समझा आपको? Yeah, it is 72. Yes. Okay, I'll give you one more question to everyone. Just quickly give me the LCM of given three number. I give you the number as 25, 14 and 16. Try to give me the LCM of this very quickly. फॉलो द सेम प्रोसेस, बट यहाँ पर आई थिंक आपको 7 तक जाना पड़ेगा बिकॉज 14 है तो वहां पे 7 यूज होगा. ओके,
According to Omkar, it is 2800. Okay, several students should get it. Yes, the answer is nothing but 2800. आशुतोष जी मिल रहा है ये 2800? Please verify it once. Okay. Yes, sir. Okay. So that's about LCM. Our main task was to work on the time and work problem. The important thing that we learn is we can add or subtract the work done if we are working on the fixed duration. Right? So let us just solve few more problems. Let's work on the type 3 problem that is asked. In this type of a question, they ask you the time required to complete the work if one worker is m times more efficient as the other worker and take d days less to complete the work. To complete the work, one worker, if they are working together and if the work efficiency of the two worker are being given. सो बेसिकली यहां पर कैसे टाइप के क्वेश्चंस हो गए? यहां पर ऐसे क्वेश्चंस हो गए जहां पर बोला जाएगा कि ए इज मोर एफिशिएंट देन बी दिस मेनी टाइम, दिस मेनी परसेंट, और वहां पे हमें चीजों को सॉल्व करना है. ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम दैट वी कैन सॉल्व. क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करेंगे. पूजा इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज आरती एंड टेक 90 days लेस देन आरती टू कंप्लीट द जॉब. फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब टुगेदर. है ना, दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना. बट यहां पर पहली बार ऐसा प्रॉब्लम हम लोग टैकल कर रहे हैं जहां पे ट्वाइस एज एफिशिएंट बोला है. सो बेसिकली उन्होंने मुझे क्या बता दिया कि अकेली है, यानी कि पूजा जो है इट इज सेम एज 2 टाइम्स ऑफ आरती. ठीक है, अकेली पूजा जो है इट इज सेम एज 2 टाइम्स ऑफ आरती. अब बाय यूजिंग दिस हम जब कभी भी पहला क्वेश्चन करते हैं ना हम लोग डिटेल में करेंगे, फिर वहां से एक ट्रिक निकालेंगे. ठीक है, सो यहां पर व्हाट आई नो इज, सपोज आई डोंट नो एनी नंबर ऑफ डेज. मुझे इतना पता है कि पूजा कितना दिन लेती है, आरती जितना टाइम लेती है उससे 90 डेज कम में पूजा काम खत्म करती है. सो सपोज दिस आरती कंप्लीट द वर्क इन n days. In n days आरती कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क. नाउ कैन एनीबडी टेल मी पूजा के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए टू कंप्लीट द एंटायर वर्क? Yes, anyone? नो, थोड़ा अच्छे से देखो. whenever they say twice efficient यानी कि उतने ही टाइम में वो डबल काम कर सकती है. twice efficient का मतलब नंबर ऑफ डेज डबल नहीं करना है. वेरी गुड, मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग नाउ द करेक्ट आंसर. देखो 2n days क्यों नहीं लूंगा? देखो बेसिकली अगर मैं बोलता हूं आई एम मोर एफिशिएंट देन यू, यानी कि मैंने कम टाइम लिया होगा, है ना. बेसिकली अगर देखो आप जो मुझे बोल रहे हो ना, मैं कैसा लिख सकता हूं, आप जो मुझे बोल रहे हो ऐसा लिख सकता हूं. पूजा इज, अगर मैंने पूजा को 10 days दे दिया, सो नाउ कैन यू टेल मी वो कितनी बार काम खत्म करेगी? रीड इट. पूजा इज ट्वाइस एफिशिएंट, इसीलिए आप लिखेंगे कि उसको सेम टाइम में वो 2 बार खत्म कर सकती है. दिस इज द मीनिंग ऑफ हैविंग अ ट्वाइस एफिशिएंसी. ठीक है, ये मतलब होता है ट्वाइस एफिशिएंट का. ठीक है, सबको ये ट्वाइस एफिशिएंट का मतलब समझ रहा है कि सेम ड्यूरेशन में वो उतना डबल काम कर सकती है. बट यहां पे क्या लिखा है, दिस पूजा टेक 90 डेज लेस. 90 डेज लेस यानी कि अगर आरती ने n डेज लिए हैं तो पूजा ने कितने लिए? n माइनस 90, बिकॉज लेस बोला ना. इज इट फाइन? ये सबको समझा? ये n माइनस 90 किस तरीके से लिखा जा रहा है? करेक्ट. नाउ ट्वाइस एज सफिशिएंट से मुझे क्या पता चला कि सेम ड्यूरेशन के अंदर वो 2 टाइम्स वर्क करते हैं. मुझे क्या देखना है कि मुझे तो सिर्फ उसके पास एक बार काम करवाना है. सो व्हाट आई शुड राइट इन दिस बॉक्स? टू वर्क वंस क्या लिखना चाहिए मुझे यहां पर? ये जो 2 है वो डिवाइड कर देंगे हम लोग यहां से यहां पर. डिवाइडेड बाई 2 क्या लिखूं मैं यहां पर? इट इज 2, दैट इज n. n ऑलरेडी था ना, सो n by 2 days.
इज इट फाइन? यहां पर अगर आप देखोगे मेरे पास जो लास्ट में दो इक्वेशन मिल रहे हैं ना, ये दोनों तो इक्वल चीज है ना? पी के लिए वन टाइम वर्क, यानी कि मुझे पता चला इसका जो मिडल पार्ट है वो भी दोनों का सेम होना चाहिए, यानी कि n माइनस 90 मस्ट बी सेम एज n/2। यहां तक सबको समझ रहा है किस तरीके से किया गया? इज इट फाइन टिल नाउ? हमने क्या क्या किया? सबसे पहला जो 90 डेज लेस था उससे हमने ये लिखा, फिर ट्वाइस एफिशिएंट से हमने ये लिखा कि अगर सेम टाइम दे दिया, यस n/2 कैसे है, वेरी गुड। सो n/2 कैसे आ रहा है? अगर आप देखोगे, सपोज मैं यही डेटा लिख देता हूं, अब है ना ये वाले पार्ट को मत देखना, डोंट सी दिस पार्ट, नाउ सी दिस पार्ट। वो हियर यहां पर वन टाइम वर्क करने के लिए उसको n डेज लग रहा है, सॉरी टू टाइम्स वर्क करने के लिए उसको n डेज लग रहा है, तो मैं उसको वन टाइम ही वर्क करूंगा, सो इट विल टेक हाफ ऑफ द टाइम, है ना? अगर आप, yes, right hand side I'll explain again, yes please, why not? Okay, so what I do, suppose for an example अगर मैं बोलता हूं कि मैं in 10 days I can complete the work 2 times, then in 5 days I will complete the work how many times? Only one time। कैसे मिला होगा? तो मैंने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2, यहां पर भी डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग दोनों साइड से सेम ही चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पी को कितना टाइम लग रहा है, और फिर हमें पता चला एक जगह पे n/90 लिखा, एक जगह पे n/2 लिखा, तो ये दोनों चीज फिर उसके बाद सेम होनी चाहिए थी। नम्रता जी ये समझा कि p in n days complete 2 times of the work? This one? Yes or no? Yes, okay, that is fine। उसके बाद जैसे कि देखो ना, यहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश की कि अगर 10 दिन में 2 बार काम कर रहा है तो मुझे सिर्फ एक ही बार काम करवाना है तो कितना लगेगा? इट इज ओनली 5 डेज। एंड हाउ यू कैन गेट इट? जस्ट डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने क्या किया, n की जगह पे n/2 किया, कैसे? डिवाइडेड बाय 2। 2 की जगह पे 2/2 लिखा, 2/2 क्या होता है? वो 1 होता है ना? वो हियर ये कैसे मिला? दिस 1 इज नथिंग बट 2/2। ये 5 कैसा है? तो इट इज 10/2, दैट इज 5। इज इट फाइन? मयूर n/2 कैसे आया समझ रहा है? एंड नम्रता जी वो राइट हैंड साइड वाला समझ रहा है किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं? ओके ओके ओके, नाउ एट द एंड व्हाट वी आर सीइंग कि दोनों जगह पे सेम ही इक्वेशन है बट अलग अलग फॉर्म में लिखे है ना? एक दिन का एक बार काम करने के लिए n/90 विच इज सेम एज n/2। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, टू गेट द वैल्यू ऑफ n। सो व्हाट आई डू, यहां पर जो 2 डिवाइड कर रहा है वो सामने जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा? इट इज 2 टाइम्स n-90 इक्वल टू n। सो ये क्या हो जाएगा? दैट मींस इट इज नथिंग बट 2n। ये 2 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, 2n को भी मिला 290 को भी मिला, तो इट इज -180 इक्वल टू n। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं सारे n वाली चीजों को एक साइड लेके एक्चुअली इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं, ठीक है? तो ये 2n, वहां पर n था तो यहां पर -n, यहां पर -180 था तो वहां पे जाके सिर्फ 180 हो गया। सो 2n माइनस n कितना होता है? वो होता है n इक्वल टू 180। सो कैन यू टेल मी a को कितना टाइम लग रहा है टू कंप्लीट वर्क नाउ? a takes how many days to complete the work? हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो डेटा सब कुछ स्क्रीन के ऊपर है, हमने लिखा भी है कहीं पर। निहार जी डबल नहीं करना है। ये n किसके लिए था? ये n जो था वो किसके लिए था? a के लिए ही था। See, a takes n days, so a complete the work in 180 days. Okay, now can you tell me about P? That is nothing but Pooja. Pooja complete the work in 90 days। अब देखो ऐसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम अब हमने की है।
अगर सपोज मैं बोलता हूं कि दोनों को साथ में काम करना है, कैसे मिलेगा आंसर? हाउ वी गेट द आंसर? अगर दोनों को कंबाइन कर देते तो कैसे करते हैं? ऐड करना है क्या मयूर जी? ऐड थोड़ी कर रहा है यहां पे, इसका मतलब एडिशन नहीं है ना। व्हाट आई एम राइटिंग, इसका मतलब है ए और पी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। द आंसर इज गोइंग टू बी 60। या यस, देखो ये निहार जी ने जो फॉर्मूला लिखा ना, वो ऊपर करो मल्टीप्लाई, नीचे करो ऐड। ठीक है, हमने कल ही सीखा था कंबाइन करने पे क्या होता है, इस तरीके से नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय ऐड। एवरीवन प्लीज वेरीफाई आंसर क्या आ रहा है। मिला 180 टाइम्स 90 डिवाइडेड बाय ऐड करूंगा तो वो होता है 270। तो 0 0 कैंसिल, ये हो गया 9 3 जा 27, ये 3 को अच्छा नहीं लगा रहा है तो वो 60 कट कर देगा इसको। सो फाइनली आंसर आ रहा है 60 डेज। ठीक है, समझा प्रॉब्लम? एक बार रीड करेंगे, फिर भी कहीं डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क। यहां पर वी आर वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि सेम ड्यूरेशन में वो कितना टाइम्स वर्क कर सकता है। ट्वाइस बोला तो उतना टाइम वर्क कर लेगा। ठीक है, इज इट ओके? ये प्रॉब्लम समझा सबको? बिकॉज ऐसे ही प्रॉब्लम आज आपको टेस्ट में भी देने हैं। वी विल सी मेनी सच प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करते हैं साथ में। ओके, लेट्स सी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। थोड़ा अच्छे से पहला रीड करो प्रॉब्लम को। ओके, आई थिंक सबने रीड किया प्रॉब्लम। मोनिका इज ट्वाइस एज गुड एज सोनिका, they work together and complete the piece of work in only 20 days. In how many days will Monica alone will complete the work? सबसे पहले डेटा में दिया है m जो है वो अकेली 2 टाइम्स s है। फिर बोला कि अगर m और s दोनों साथ काम करेंगे तो 20 डेज के अंदर काम जो है वो खत्म हो जाएगा। m और s लिखना था मुझे। In 20 days the work will be completed on time. But what I want, I just want to see कि m को कितना टाइम लग रहा है to complete the work one time. सबसे पहले मुझे यहां पर ये देखना होगा कि ये जो m plus s same as what? m plus s. What I can write on the place of m? On the place of m, I can write 2s plus s will take 20 days to complete the work one time. यानी कि अगर s साथ में काम करेंगे तो 20 डेज के अंदर काम खत्म हो जाए। लेकिन अगर अकेला s काम करेगा तो कितने दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा? कैन यू टेल मी दैट? थिंक अबाउट इट एंड आंसर। अगर 3s साथ में काम करते तो 20 डेज, अगर अकेला s काम करेगा तो नो। देखो यही चीज हमें यहां पर नोट करनी थी कि वो जो 3 है अब यहां से डिवाइड नहीं होता है। अगर सपोज मेरे पास वर्क और डे होता है ना, तब अगर सामने की तरफ लेके जाओगे तो डिवाइड जाता है। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं होगा। जब आप नंबर ऑफ पर्सन के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है तब सामने की तरफ जाके डिवाइड नहीं होगा। बेसिकली खुशी जी क्या होगा कि अगर सपोज मैं बोलता हूं कि अगर मैं और आप साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, वी कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज। अगर लेकिन आपको अकेले को काम करना है, सो हाउ मच टाइम विल टेक? डेफिनेटली इट विल टेक मोर डेज।
राइट? तो वो ज्यादा दिन लगेगा आपको, ये समझ रहा है सबको? लेकिन एटलीस्ट सबसे पहला, अगर 3 लोग साथ में काम कर रहे थे तो 20 डेज था, अगर अकेला काम कर रहा है तो ज्यादा दिन लगने चाहिए, तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। सबको सबसे पहला ये क्लियर हो रहा है कि 3s का अगर 20 है तो 1s का जो भी होगा वो ज्यादा दिन होना चाहिए था। यस? तो अगर डिवाइड नहीं करना है तो क्या करोगे आप? If you don't have to divide, what you are going to do then? You will multiply it by that number, right? So it is going to be 3 times 20 days. That means alone S can complete the job in 60 days. ठीक है? तो यहां पर हम लोग नया टाइप ऑफ क्वेश्चन सीख रहे हैं, जहां पर हमने ये देखा कि नंबर ऑफ पीपल दिए थे, तो वहां से अगर सामने की तरफ जाएगा तब वो मल्टीप्लाई होता है। अगर वर्क और डे के बीच में है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट सही है, यहां पर मल्टीप्लाई करें तो वहां पर डिवाइड। बट अगर नंबर ऑफ पीपल और डेज के बीच में है तो यहां से वहां जाएगा तो भी वो मल्टीप्लाई होगा। और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीख रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आप देखोगे, अगर अकेला बंदा 60 दिन में काम कर रहा है तो उसको 3 ऐसे लोग अगर मिल जाएंगे तो 20 डेज के अंदर काम कर लेंगे ना। कैन यू सी द रिलेशन बिटवीन दिस टू? अगर अकेला बंदा 60 दिन के अंदर काम कर रहा है तो ऐसे अगर 3 लोग मिल जाएंगे तो 1/3 ऑफ द टाइम में हो जाएगा काम। अगर लोग ज्यादा है, द नंबर ऑफ पीपल आर मोर, देन द टाइम रिक्वायर्ड वुड बी लेस, राइट? दिस इज द कॉन्सेप्ट वाई वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना? बिकॉज दोनों एक दूसरे के इनवर्स में चलता है, ज्यादा लोग है तो कम टाइम लगेगा ना, इसीलिए जब यहां से वहां गए थे तब वो मल्टीप्लाई हो रहा था। यहां तक सबको ये समझ रहा है कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है? बिकॉज नाउ द डिफिकल्टी लेवल विल बी इंक्रीजिंग बाय बिट एंड बिट, है ना? सबसे पहले हमने एफिशिएंसी वाला प्रॉब्लम देखा, लेकिन यहां पर अभी नंबर ऑफ पीपल को स्विच करने वाला देख रहे हैं हम लोग। समझ रहा है ये प्रॉब्लम? अब तक समझ रहा क्या कितना हुआ ये? Okay, the silence sometimes means yes, but sometimes means no. I want to know what does it mean now. Okay, okay, it is understood. Okay, now question के अंदर मुझे इंफॉर्मेशन जो मांगा गया था वो मोनिका से रिलेटेड था। मुझे पता चला कि ये जो सोनिका है वो 60 दिन के अंदर काम खत्म करती है, और मोनिका जो है उससे ट्वाइस एज गुड है, उससे दो गुनी ज्यादा अच्छी है, तो वो कितना टाइम लेना चाहिए उसको? कैन एनीबडी गेस दैट नंबर नाउ? वेरी गुड, अगर वो 2 टाइम्स अच्छी है तो हाफ ऑफ द टाइम लेगी। वेरी गुड, तो आंसर इज गोइंग टू बी, इज इट फाइन? समझा ये प्रॉब्लम किस तरीके से किया गया? और वापस से रिपीट करूंगा कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। Okay, sorry. Actually, when students join at that time, I make it as mute, because क्या था ना, when you guys join ना, उस टाइम से by default आपका mic जो है ना वो on रहता है, so I'll just make the changes. Extremely sorry, आप में से किसी को मुझे बताना चाहिए था पहले, कोई बात नहीं है, I'll just do it now, don't worry. Before switching to the session, I should have done it, but it's fine, I'll do it now. Yes. Riya, I'll just unmute you, allow you to unmute. Okay, where is it? Yeah, now you are allowed to. Yes, you can unmute. Sir, can I 1 minute? I have a request to make you. Actually, right now I'm in college and I have this test going on. So my phone is not having battery, so it's almost like 15%. So can I give the test exam right now? I have to save the battery. You just give the test in the evening. Yeah, can I do that, sir? Yes. Sorry, sir. Thank you, sir. Okay, Ji. Okay, that's fine.
I thought she must had some doubt. It's सर fine. मेरे को एक डाउट है हाँ जी, बोलिए ना सर जी. सर, ये जो मेरे को कंसेप्ट ही नहीं समझा, अगर डेज और वर्क के बीच में रहेगा तो डिवाइड करेंगे और पर्सन और डेज के बीच में रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे. Okay, let me just clarify it. Why it is a reasoning like this? Okay. It is a good question because this is a basic fundamental mathematics. ये सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई डिवाइड कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है. तो सबसे पहला ये समझ लो कि जब कभी भी चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है, जैसे कि पीपल और टाइम के बीच में क्या था, इनवर्स प्रोपोर्शन था. अगर सपोज नाउ आई आस्क अ क्वेश्चन, सपोज इफ आई गिव यू मोर टाइम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन? Yes, More work. it would be more work. Can you see, if you want to do the more work, you will require more time. Yes. So what is happening is, whenever there is an inverse proportion like this, what we learn is यहां से वहां जाएगा वो मल्टीप्लाई होता है. लेकिन जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तब चीजें डायरेक्टली होगी. जैसे कि आप इक्वल टू साइन जब लिखते हो ना, इक्वल, दैट इज अ नोटेशन ऑफ एक्चुअली समवेयर डायरेक्शन. बिकॉज अगर यहाँ का नंबर बड़ा हो रहा है तो यहाँ का नंबर बड़ा हो रहा है, तब जाके आप लिखते हो इक्वल टू साइन, है ना. उसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सपोज यहाँ पर 2 है तो ये 2 आता है तब डिवाइड होता है ना. जो हम लोग स्कूल से सीख रहे हैं कि यहां से वहां जाने हाँ. पे चीजें डिवाइड होती. हाँ. बट जब भी चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन में है तब क्या होगा, अगर सपोज यहां से वहां जाएगी तो एक्चुअल में वो चीज नीचे है तो नीचे तो उसको मल्टीप्लाई हो जाएगी. गेटिंग द पॉइंट. सो व्हेनेवर स्विचिंग होता है इनवर्स प्रोपोर्शन वाली चीज में, वहां पर मल्टीप्लाई. जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाली चीज है तब डिवाइड. What I'll do is I'll explain you once again. ये हर जगह पे अप्लाई होता है. Yes, everywhere in mathematics it is applied, but is almost hidden because क्या था ना, स्कूल में कोई बताता नहीं था. Suppose if I tell you my x equal to y, अच्छा. है ना. So if I tell my x is increasing, my y is increasing, yes or no? हाँ. So in this case I am okay with it. Now suppose मेरे पास हम्म. 2x है equal to y. अगर suppose मुझे 2 को उस तरफ लेके जाना है, तो I'll write x equal to 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, सामने जाके डिवाइड में चला गया. तो y के साथ तो डिवाइड में गया ना अभी. हाँ. 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 गेटिंग द पॉइंट. वो y के साथ कैसा गया, हाँ. y के साथ वो डिवाइड में गया, चेंज किया था. बट लेट मी राइट अदर वे राउंड. I write x equal to 1 by y. Now I understood that whenever my y increases, x जो है वो डिक्रीज हो रहा है, right? So now suppose if I have 2x equal to y, Right. 1 by y, sorry I should write 1 by y था. Now अगर ये जो 2 है वो जाए उस तरफ तो क्या होगा, वो सेम चीज होगा, बट y के साथ उसका क्या हुआ, y के साथ तो आपस से मल्टीप्लाई हुआ ना. गेटिंग दिस फंडामेंटल, कि जब कभी भी चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन में साइड सर चेंज करने पे वेरिएबल पे तो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहा. इज इट okay? Okay, let me Yes, just give sir. you one more question, type of a Sir. question. Calculate the combined time required by a man to complete the certain work in a certain hour for a given another set of the number required men work an hour. ये देखो, ये ना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे. देयर आर 10 men working 6 days, working 8 hours per day and completing this much amount of the work. If 4 men are working, then what will happen in this number of days? यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन देते हैं आपको. नंबर ऑफ मेन कितने हैं, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, और उसके साथ साथ पर डे उन लोग कितना काम कर रहे हैं. This 3 information would be provided. This is a type 4 problem in time and work. Let's just try to see this. एक बार सिर्फ रीड करते हैं. There are 6 men can pack 12 boxes in 7 days by working for 7 hours a day. In how many days 14 men pack 18 boxes if they work 9 hours a day? Very basic type of a problem. Okay, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं 3.5, 5, 7.5 एंड 12. इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एक रिकैप ले लूंगा. रिकैप ये था कि हमने कहीं कुछ ये सीखा था, रेट ऑफ वर्क. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ वर्क? W. Yes, it is W
upon t. Very good. So over here w upon t was the answer. Rate of work is work done divided by time, right? ये सिचुएशन के अंदर उन्होंने कुछ नहीं बोला, यहां पर उन्होंने बाय डिफॉल्ट आपको ये बता दिया द रेट ऑफ वर्क इज कांस्टेंट, बिकॉज सेम मैन टाइप के बारे में बात हो रही है, राइट? सो रेट ऑफ वर्क जो होगा ना वो कांस्टेंट होने वाला है. तो मैं सबसे पहला ये देखूंगा कि मेरा रेट ऑफ वर्क फर्स्ट सिचुएशन में क्या है. फॉर द फर्स्ट सिचुएशन कितना काम कर रहे हैं, वर्क डन, कितने बॉक्सेस उन्होंने फिल किए, 12. सो दिस इज नथिंग बट माय वैल्यू ऑफ. सो इन द फर्स्ट केस my rate of work is nothing but 12 divided by time. Can you tell me what is the time taken? Just read the first line और मुझे ये बताओ कि कितना टाइम उन्होंने लिया होगा. ओके, वेरी गुड. राज ने ये 49 सोचा ना, बहुत अच्छा सोचा. बट राज ये 7 into 7, that means this 49 hours is given by one man, right? 49 hour is given by one man, but how many men are working to do this? है ना? There are 6 men working. So can I say the correct answer be 6 times 49, because हर किसी ने 49 hour दिया. Yes. So total man hour कितने लगे? Total man hour लगे 6 into 7 into 7, है ना? So ये जो चीज मुझे मिली है वो मुझे पहले लाइन से मिली है. अब सेकेंड लाइन पे मैं सेम चीज करने की कोशिश करता हूं. सेकेंड लाइन में भी रेट ऑफ वर्क क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W फॉर द सेकेंड लाइन? सेकेंड डेटा सेट के लिए W क्या है? What is the amount of work done given? Yes, it is 18. उन्होंने 18 बॉक्सेस किए तो 18. What is divided with? किससे डिवाइड करना चाहिए मुझे? Yes, it is 14 working. They are working for 9 hours. क्या आपको नंबर ऑफ डेज पता है क्या? कितने दिन उन लोग काम कर रहे हैं? We don't know that. So let the number of days be x, है ना? जैसे कि यहां पे मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर, है ना? तो यहां पर भी वही नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ आवर एंड नंबर ऑफ डेज. सिंस वी आर वर्किंग इन द सेम टाइप, द रेट ऑफ वर्क इज इक्वल, यानी कि ये जो है R और ये R दोनों इक्वल होने चाहिए. So it is nothing but 12 divided by 6 into 7 into is same as 18 divided by 14 into 9 into x, जो हमें ढूंढना है. We are just interested in that value of x, है ना? तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा? सिर्फ कैलकुलेशन है. सो ये क्या होता है? ये होता है 6 1 जा 6 2 जा. फिर ये 2 जो है वो मैं सामने की तरफ कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले 9 2 जा. फिर ये देखो 2 2 न्यूमरेटर में है ना, so I can cancel. अच्छा, because I think there are some BA students as well, so I can just simplify this calculation further. मैं क्या करता ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ. यहाँ की ऊपर जाएगी, यहाँ की चीज इस तरफ आ जाएगी. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 ऑलरेडी है वो इंटू 14 इंटू एक्स इज सेम एज, यहां पर जो 2 था ऑलरेडी 2 इंटू 7 इंटू 7. मुझे सिर्फ x चाहिए तो x रखता हूं और सामने की तरफ सारी चीजें लेके जाऊंगा. ओके, एंड डिवाइडेड बाय ये 2 टाइम्स 14 है, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, सामने जाएगा तो नीचे जाएगा. सो दिस 2 टाइम्स 14, 2 2 कैंसिल, 7 1 जा 7 2 जा. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes, which of the following option was correct? It was 3.5 is the correct answer. Right, that is nothing but 3.5.
everyone understood? This is one of the important problem because बहुत सारे क्वेश्चन दिखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा सबको? हाँ जी बोलिए. Sir, can you explain again? Yes, we will do it again. Okay. Okay, यहाँ पर मैंने एक हिंट लिखा है. It's fine. But let me just create a new question. So उसके अंदर explanation easy हो जाएगा. Suppose I give you two data set. First data set यानी कि first information. Second data set यानी कि second information. I will tell you there are 5 workers working for 10 and every day they are working for 8 hours. And they complete the work 12 times. They complete the work. In another data set, I will ask you, there are, suppose if I take 10 workers, they work for 8 days and only 6 hours per day. What amount of the work would be completed? How many times would be completed? है ना? ये बेसिक सा रैंडम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है. यही चीज होने वाली है. एक डेटा सेट कंप्लीट होगा, एक थोड़ा इनकम्प्लीट होगा. बट सबसे पहली चीज हम क्या ढूंढेंगे? आप जब कभी भी ऐसा डेटा दिया है, आपका काम आर का वैल्यू ढूंढो. आर आर कैसे मिलता है आपको? तो रेट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना? कितना काम किया है वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. कैसे पता चलता है? मुझे सबसे पता चला उन लोग हर दिन इन द फर्स्ट डेटा सेट हर दिन 8 आवर काम करते हैं. बट ऐसे कितने दिन काम करे? 10 दिन. सो मुझे पता चला ऐसे 10 टाइम्स उसको मतलब कि 80 आवर्स हो जाएंगे. बट ऐसे 80 आवर्स जो है वो मुझे 5 टाइम्स मिलेंगे बिकॉज मेरे पास ऐसे 80 आवर हर कोई वर्कर देने वाला है. राइट? वन वर्कर विल गिव 80 आवर. तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 400 मैन आवर मेरे पास है इन टोटल. ये समझा आपको? 400 मैन आवर कैसे मुझे मिला? यस और नो? आई थिंक जिसका भी ऑडियो था, आई डोंट नो कि ऑडियो किसका होता है. ओके, इट वाज शुड बी. ओके, सो नाउ देखो ये मैंने जो निकाला, कैसे निकाला? मैंने बेसिकली क्या किया? नंबर ऑफ मेन गिवन इनटू नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ आवर्स दे आर वर्किंग, है ना? सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? ये 12 जो है वो क्या है? 12 टाइम्स का मतलब क्या है? दे हैव कंप्लीटेड द वर्क 12 टाइम्स. सो इट इज नथिंग बट वर्क डन 12 divided by number of men, that is nothing but 5. Number of days they are working is nothing but 10 divided by number of hour. तो एक्चुअल में मैंने क्या किया? ऊपर लिखा है कि कितना काम किया है और नीचे मैंने लिखा है मैन आवर, टोटल मैन आवर. और अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको रेट ऑफ वर्क मिलता है. एक ही क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन के अंदर जो रेट ऑफ वर्क होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सेम रहेगा. मतलब कि ये जो चीज मैंने पहले डेटा से निकाली, सेम चीज मुझे दूसरे डेटा भी मिलनी चाहिए, यानी कि वहां पर भी आर मिलना चाहिए. कैन यू टेल मी व्हाट शुड आई राइट इन द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर में मुझे क्या लिखना चाहिए? बिकॉज रेट ऑफ वर्क में ऊपर और नीचे होता है ना, तो न्यूमरेटर में क्या लिखूं मैं? यस, एक्स, बिकॉज वही तो पूछा है कि कितना काम करना है. राइट? तो ये एक्स है, जो पूछा है वो एक्स डिवाइड बाय व्हाट आई शुड राइट? Yes, it is 10 into 8 into 6. ठीक है? बिकॉज सेम प्रॉब्लम है यहां पर, जो उसको आप इक्वेट कर सकते हो यहां वाले आर के साथ. मतलब कि मुझे पहले क्या मिला था? 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 इंटू 8 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8 इंटू 6. कैन यू टेल मी x का वैल्यू क्या होगा? हर कोई मुझे ये कैलकुलेट करके देगा. चलो, is it 144? Please verify everyone. Don't trust. Find out the value of x. चलो,
ओके, एवरीवन गेटिंग द आंसर 14.4। निकालेंगे हर कोई आंसर, कैलकुलेट करेंगे। चलो, I'll give you time to calculate। बस कैलकुलेशन के बिना नहीं होगा। चलेंगे हर कोई। Those who are getting the answer 14.4, please write yes in the chat box। Okay, so but now I think the concept is clear to everyone कि कैसे ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को करना चाहिए। ओके, शुरभी जी समझ रहा है ये क्वेश्चन टाइप क्या था और किस तरीके से हमने उसको किया? ट्रिक क्या है? W डिवाइडेड बाई M इंटू D इंटू H, दोनों साइड में वो सेम होता है, फिर उसको इक्वेट करो। कोई एक ही चीज उन्होंने पूछी होगी, बाकी सब कुछ दिया होगा। Okay, if anyone has any doubt please ask। Okay, let me just give you one more similar type of a problem। अगर आपसे ये हो जाता है तो आपको समझा है, अगर नहीं होता है तो नहीं समझा होगा। ओके, ये नहीं करना है, दूसरा वाला करना है हमें। नहीं, ये वाला नहीं करना है, दूसरा वाला करना है। ये तो किया था, ये भी किया था, रिस्पेक्टिवली डू अलोन। ओके, ये भी करेंगे हम लोग। मुझे वो मैन आवर वाला चाहिए। आई जस्ट सर्चिंग फॉर द रिक्वायर्ड प्रॉब्लम हमारे कॉन्सेप्ट के साथ तुरंत कनेक्ट होता। ओके, ये भी हम लोग करेंगे। हम लोग को सिर्फ सिंगल डेटा वाला चाहिए। is twice 20 women। ओके, ठीक है, हम लोग दूसरे टाइप के में से इसको करते हैं। फिर टेस्ट के अंदर आ जाएगा सीधा। Can do the work। ओके, आई थिंक ये देखा ना हमने। ओके, स्नेहा जी, लेट अस जस्ट डू। ओके, आई थिंक दिस इज नथिंग बट द कैलकुलेशन करना है ना। ओके, लेट्स डू। सबसे पहला स्नेहा जी, अगर दोनों इक्वल के अपोजिट साइड पर है, जैसे यहाँ पर 10 और 8 को अगर आप देखोगे ना, वो इक्वल के अपोजिट साइड पे है। अगर इक्वल के अपोजिट साइड पे है ना तो सेम रहेगा, तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। सो इट इज 8 8 10 10 कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में जो 6 है वो सामने की तरफ दे दो। सो इट इज 12 into 6 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x। राइट, अब इसके बाद दूसरी चीज क्या कर सकते हो? दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 5 करो। वो एक तरीका होता है। बट अगर मैं कंपटीटिव एग्जाम में, मुझे पता है मेरा टाइम बचाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इन दिस केस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा? बिकॉज डिनोमिनेटर में 5 टूजा मिलता है और 5 टूजा एक अच्छा नंबर है। डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 10 हो गया। फिर अगर आप न्यूमरेटर में देखोगे तो ये 2 into 6 होता है 12, 12 होता है 144, है ना। अब देखो फायदा क्या होगा ये 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, कि डिनोमिनेटर में जो 10 है वो मुझे बताता है कि आंसर इज 144। सिंस एक ही जीरो था तो एक नंबर के आगे डेसिमल, सो आंसर इज 14.4। इज इट फाइन? ओके, लेट्स सी अनदर टाइप क्वेश्चन। ये तो हमने कल किए थे। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये। ABC can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days A do the work if he is assisted by B and C on every third day? यार इंटरेस्टिंग है ये प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ट्राई टू थिंक अबाउट इट। डेटा के अंदर दिया है A complete the work in 20 days, B complete the work in 30 days, C complete the work in 60 days। अब हो क्या रहा है सिचुएशन में? काम अकेला ए ही करेगा, बट एवरी थर्ड डे बी और सी आके उसको हेल्प करते हैं। तो 2 दिन 2 डेज के लिए ए अकेला,
A will work alone, and फिर on third day this B and C will come and work together. ये तीनों फिर साथ में काम करेंगे. सबको ये क्वेश्चन समझा सबसे पहला क्या है कि 2 दिन ए अकेला काम करेगा. जैसे ही थर्ड डे आता है ए बी सी आएंगे. जैसे ही फोर्थ और फिफ्थ डे है ना, फोर्थ और फिफ्थ डे पर ए अकेला काम करेगा. फिर सिक्स्थ डे पर वापस से ए बी सी साथ में काम करेगा. तो सबको ये पैटर्न समझ गया क्वेश्चन का. Now, based on this, we have to answer the question. सबसे पहला सिर्फ ये समझता है कि 2 दिन के अंदर फर्स्ट और सेकेंड डे में ए ने कितना काम किया होगा. ओके, सपोज आई गिव 1 डे टू ए. इन 1 डे कंप्लीट व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क. ए ने कितना काम किया होगा? कैन एनीबडी टेल मी? इन 1 डे he complete 1/20 of. ओके, लेकिन ऐसे उसको कितने दिन दे रहे हैं हम लोग? उसको हम लोग ऐसे 2 दिन दे रहे हैं. करेक्ट, वी आर गिविंग सच 2 डेज. तो कितना काम किया होगा? एक दिन में अगर 1/20 है तो वो कितना हो जाएगा? 2 दिन दिया तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, टाइम बढ़ा रहा हूं. वापस से मयूर जी वापस से सुनेंगे, मैंने क्या बोला? टाइम बढ़ा रहा हूं. तो वर्क, टाइम और वर्क क्या प्रोपोर्शन है? टाइम और वर्क का प्रोपोर्शन क्या है? डायरेक्ट है ना, तो डायरेक्ट है तो क्या होगा? यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो सामने भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, यहां से वहां लेके जाते हो तो डिवाइड जाता है. राइट, सो इट इज गोइंग टू बी 2/20. ठीक है, जब कभी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना तो आप अपना ही लॉजिक लगाओ. नॉर्मली जो होता है ना वो, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो उल्टा लॉजिक. ठीक है, दैट इज सेम एज 1/10 ऑफ द वर्क. सबको ये समझा? 2/10 ऑफ द वर्क से 1/10 ऑफ द वर्क. नाउ थर्ड डे ए बी सी तीनों साथ में आ रहा है. अगर लेकिन सपोज इसी तरीके से मैंने ए बी सी के ऊपर काम करना है, अगर सपोज एक दिन देता हूं तो इट विल कंप्लीट 1/30 ऑफ. एक दिन के अंदर सी कितना काम करता है? सी काम करता है 1/60. लेकिन अगर इसी तरीके से तीनों अगर साथ में काम करेंगे एक दिन, सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा इन सबका एडिशन. इट इज 1/20 ए ने खत्म किया, प्लस 1/30 बी ने किया, प्लस 1/60 जो है वो सी ने किया. ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? एलसीएम क्या है इन तीनों नंबर का? 20, 30, 60. एलसीएम क्या है? 120. तो मुझे पता चला मुझे डिनोमिनेटर में 120 चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? हर एक नंबर को मैं 120 बनाने की कोशिश करता हूं. तो ये 20 है, सो 20 है ना 120, तो ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई. 34 120, तो ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई. 22 120, इसलिए ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई. राइट, तो मैंने क्या किया? मैंने हर जगह पर नीचे कॉमन डिनोमिनेटर 120 का डाला. न्यूमरेटर में क्या आएगा? 6 + 4 + 2. सो इट इज नथिंग बट 6 + 4 + 2, that is nothing but 12 divided by 120. 12 divided by 120 is nothing but 1/10 of the work. यानी कि अगर ये तीनों साथ में आ जाते हैं एक दिन काम करने के लिए, खत्म करते हैं 1/10 ऑफ द वर्क. ठीक है, सबको यहां तक समझ रहा है किस तरीके से किया गया चीजें? इज इट फाइन टिल नाउ? ओके, व्हाट अबाउट एवरीवन? आई हैव 155 स्टूडेंट्स. सब लोग जाग रहे हैं ना? ओके, यस, जाग रहे का यस है सबका. ओके ओके, दैट्स फाइन. सो नाउ लेट अस जस्ट सी इट वेरी केयरफुली. अब मैं क्या करता ना, डेज को यहां लिखता हूं. नंबर ऑफ डेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 जाता। अगर मैं देखूंगा ना, ये पहले 2 दिन के अंदर 1/10 ऑफ द वर्क ए ने अकेले ने खत्म किया। ऑन थर्ड डे बी सी आके साथ में मिलके तीनों 1/10 ऑफ द वर्क खत्म कर रहे हैं। सो पहले 3 दिन में कितना काम खत्म हुआ, कोई बता पाएगा? ओके ओके ओके, कौन सा वाला 1/10? ये वाला नहीं समझा। ये वाला 1/10 नहीं समझा क्या? यशस्वी फॉर ए, अच्छा फॉर ए वाला, ओके ओके ओके, दैट्स आल्सो फाइन। इन 2 डेज, ओके। सबसे पहला यशस्वी जी, मुझे पता है कि टाइम और वर्क होता है वो दोनों सेम तरीके से ऊपर और नीचे जाता है, ठीक है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी बढ़ेगा, ये समझ रहा है यशस्वी जी? यस। तो यहां पर मुझे क्या पता था कि इन 1 डे ए कैन कंप्लीट 1/10 ऑफ द वर्क। अब मैंने यहां से यहां पे क्या कर दिया, मैंने टाइम बढ़ा दिया ना। मैंने टाइम कितना बढ़ाया? मैंने टाइम को 2 टाइम्स बढ़ाया। दोनों साथ में बढ़ते हैं तो यहां पर भी क्या होगा, वर्क डन जो है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, करेक्ट। यहां पर पहले कितना था? पहले था 1/20 था, सॉरी, पहले 1/20 था। अब क्या होगा, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए 2/20, 2 के टेबल में 1/10। यस यशस्वी जी, आप समझ रहे हैं किस तरीके से किया हमने, कि जितना टाइम्स डेज हो गया उतना टाइम्स वर्क डन भी हो गया, है ना। और एक चीज थी, यहां पर हम लोग इतना सब कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या हमने बेहतर कुछ चीज सीखी है क्या? अगर सपोज मैं डायरेक्टली आपको पूछता कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर साथ में काम करना है तो कितने दिन में खत्म कर सकते हैं ए प्लस, हमने कुछ ट्रिक सीखा था क्या? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था, 2 लोगों के लिए क्या था, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, नीचे दोनों को ऐड करो। 3 लोगों के लिए क्या था, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और नीचे क्या था, नीचे पैर बना के डिवाइड करना है, राइट। तो पैर बना के 20 30 के साथ प्लस 20 60 के साथ प्लस 30 60 के साथ, यहां से आपको नंबर ऑफ डेज जल्दी मिल जाता था। बट ठीक है, हमने जो निकाला सही है। बट यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? यस, खुशी जी ने सही पकड़ा है, राइट। इन फर्स्ट 2 डे 1/10 ऑफ द वर्क, थर्ड डे में 1/10 ऑफ द वर्क, यानी कि टोटल कितना काम हो गया, 1/10 प्लस 1/10 कितना होता है ये? दैट इज 2/10, 2/10। ओंकार जी, जब कभी भी डिनोमिनेटर कॉमन होता है, सेम होता है, हम लोग एक ही बार लिखते हैं, है ना, उनको ऐड नहीं करना है। डिनोमिनेटर में जो नंबर है एज इट इज, फिर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, ठीक है। सो दैट इज समथिंग, कैन आई से इट इज नथिंग बट 1/5 ऑफ द वर्क कंप्लीट हो चुका है। यस यस। सो नाउ देखो, क्वेश्चन है ना वो साइकिल वाला क्वेश्चन है, ऐसे टाइप को क्वेश्चन को बोलते हैं साइक्लिक क्वेश्चन है, बिकॉज आफ्टर 3 डेज सेम चीज रिपीट होने वाली है, राइट। आफ्टर 3 डेज वापस से वही चीज होने वाली है, जब तक काम खत्म नहीं होता है तब तक यही चीज चलने वाली है, राइट। तब क्या होगा, वापस से अगले दिन में वापस से 1/5 ऑफ द वर्क खत्म हो जाएगा, वापस से और 3 दिन में 1/5 ऑफ द वर्क खत्म हो जाएगा, और 3 दिन में 1, और 3 दिन में 1/5, चलते ही रहेगा। टोटल मुझे कितना करना है, मेरा टोटल आना चाहिए 1W। ये 1W कब आएगा, जब ये 1/5 कितनी टाइम होगा, ये 1/5 जब आप 5 टाइम्स लोगे तब जाके 1 टाइम वर्क कंप्लीट होने वाला है ना। ये 1/5 1/5 1/5 कितनी बार होगा, 5 बार होगा तब जाके खत्म होगा। ये एक 1/5 के लिए आपको 3 डेज लग रहे थे, आपको ऐसे कितने 1/5 चाहिए, 5 चाहिए। सो टोटल कितने डेज लगने वाले हैं आपको, कैन यू गेस? द आंसर इज गोइंग टू बी 15।
इज इट फाइन? सबको ये समझ रहा है प्रॉब्लम किस तरीके से किया गया? मैंने जानबूझ के यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को इतना स्पेसिफिकली लिखा था, बिकॉज क्या होता है ना, समटाइम्स इतना परफेक्ट नहीं आता है। यहाँ पे 3 5 तुरंत आ गया, ऐसा भी हो सकता था कि 14 दिन में काम खत्म हो रहा है ना, तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। यस खुशी जी, आई एक्सप्लेन द लास्ट पार्ट। तो खुशी जी एटलीस्ट ये क्लियर हो गया कि इन 3 days 1/5 ऑफ द वर्क वुड बी कंप्लीटेड, वहां तक क्लियर था? 3 days 1/5 ऑफ द वर्क होता है। यस सो ये जो मुझे पता चला, ओके थोड़ा सा वो हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओके आई जस्ट राइट ओवर हियर। मुझे पता चला इन 3 days, मैं आपको इजी तरीका बता दूंगा, 5 ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब खुशी जी मुझे क्या करना था, मुझे तो पूरा काम खत्म करवाना है ना, पूरा काम यानी कि मुझे 1W चाहिए, राइट? 1W यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे 1W चाहिए। तो मतलब कि यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/5 इंटू 5 इज गोइंग टू बी 1। तो सेम चीज, अगर ज्यादा काम करवाना है तो ज्यादा आप टाइम भी देना पड़ेगा। कितना टाइम्स आपने काम करवाया? 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 5 टाइम्स नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे। सो इट इज 5 3s are 15 days। इज इट फाइन? खुशी जी पहले ये समझा, आई कम टू यू निहार एज वेल। यस देखो निहार, ऐसे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से किया जाता है? देखो ऐसा होता, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सपोज प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट साइकिल नहीं करता है। ऐसा भी हो सकता था कि 12 दिन के बाद अब सपोज सिर्फ 1/10 ऑफ द वर्क बाकी है, मुझे ये पता चला 12 बाद दिस इज द वर्क डन लेफ्ट। तो कैन यू टेल मी अब कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? यस नम्रता जी, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों से 2 से डिवाइड किया है ना। 2 1s एंड 2 10s 20, ठीक है। एंड निहार जस्ट सी फोकस ऑन दिस, मैंने क्या कहा कि सपोज 12 दिन के बाद 1/10 ऑफ द वर्क बच गया, देन हाउ मेनी डेज मोर वुड बी रिक्वायर्ड, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज वन मोर डिफिकल्टी लेवल, है ना। अब मैं क्या सोचूंगा, अब मैं पर डे के हिसाब से जाऊंगा। अब यहां के बाद वापस ही साइकिल है, 13 डे पे कौन आएगा? 13 एंड 14 डे पे ए अकेला आके काम ये खत्म कर सकता है, राइट? ए अलोन विल कम एंड कैन कंप्लीट दिस मच अमाउंट ऑफ द वर्क, हेंस द वर्क वुड बी कंप्लीटेड ऑन 14 डेज, है ना। तो ऐसे टाइप की प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि साइकिल पूरा रिक्वायर्ड नहीं होता है काम खत्म करने के लिए। हम लोग ऐसा एक पॉसिबल होगा तो ऐसा भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जहां पर एक पूरा साइकिल रिक्वायर्ड नहीं, यानी कि मेरा साइकिल 4 टाइम चलता है और उसके बाद एक हाफ ऑफ द साइकिल रिक्वायर्ड है, ठीक है। Okay, we'll see those kind of things as well, but I think you guys can answer this question. Try to see this question. हमने एक ऐसा efficiency वाला प्रॉब्लम किया था आज। खुशबू गुप्ता, अभी ज्वाइन किया आपने, सेशन 2 बजे शुरू होता है। वेरी गुड। That's right. Everyone will read this question. A is thrice as good as workman as B, and therefore it is able to complete the work in 60 days less than B.
वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। थोड़ा इसको सोच समझ के करना है आपको, है ना, सोचेंगे। सबसे पहला उन्होंने क्या दिया, thrice as good as B, so A is same as 3, right? और इसके साथ साथ क्या दिया, therefore they are able to finish the work in 60 days less and they are working together। तो क्या होगा, सबसे पहला if I tell you my B complete the work in n days, and तो A will complete the entire work in how many days? Yes, can anybody tell me why I should write in this place? A will complete the entire work in, very good, it is n minus 60 days. That could be written from the first. Now again what I know is since A is thrice as good, तो अगर सपोज मैंने A को n days तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने A को n days दिए तो कितने टाइम वो काम खत्म करेगा, नो नो नो, थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली, वो 3 times more efficient है, इट शुड बी 3 times ऑफ द वर्क। अच्छा आप मुझे आई थिंक उल्टा भी बता रहे तो पता नहीं, बट इट इज 3 times ऑफ द वर्क, है ना, बिकॉज 3 times मोर एफिशिएंट, यानी कि सेम टाइम के अंदर वो 3 times ज्यादा काम कर सकता है ना। तो ये देखो, ये जो पहला वाला है 60 लेस से हमने ये लिखा, सो ये फर्स्ट से हमने ये फर्स्ट लिखा, फिर ये 3 times गुड से ये देखो यहाँ पे सेकंड जो सर्कल करके लिखा है उसका यूज करके हमने ये लिखा। अब सपोज मुझे यहां पर एक ही बार काम करवाना है ना, तो 3 times से 1 time। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड नाउ? आई थिंक राज ने थोड़ी देर पहले हमें वैसा ही आंसर दिया था। राज इज अहेड ऑफ टाइम, ही इज लिविंग इन द फ्यूचर, इसीलिए देखो उसको पहले से आंसर पता था क्या पूछने वाला। द आंसर इज गोइंग टू बी यस। कैन एनीबडी सी व्हाट इज आंसर नाउ? या इट इज गोइंग टू बी n by 3, है ना, n by 3 days। अगर आप देखोगे लास्ट में जो दोनों इक्वेशन लिखे हैं वो सेम दिख रहे हैं ना, सिर्फ फर्क क्या है, ये दोनों बॉक्स, सो दे मस्ट बी इक्वल। n minus 60 is same as n by 3। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ n? हर कोई मुझे n का वैल्यू निकाल के देगा, है ना। लास्ट के दोनों इक्वेशन सेम है, जहां पर जो फर्क था वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो n minus 60 मस्ट बी सेम एज n by 3। Yes, the value of n is 90. Very good. Very good. Okay. So the value of n, हर किसी को 90 मिल रहा है क्या? Okay, त्रिशाला जी को 2 मिल रहा है, त्रिशाला जी। Okay, let's see त्रिशाला जी कैसे करेंगे इसको। सिंपल वे क्या होगा, सबसे पहले 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, 3n minus 60 is same as n। Now this is multiplied to both the numbers, 3 into this, 3 into this, so it is 3n minus 180 equal to n। अब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, so ये हो जाएगा 3n minus n is same as 180। Therefore 3n minus n is nothing but 2n is same as 180। So what is the value of n? n is nothing but 90 ना, ये 2 वहां पर डिवाइड कर दिया ना, so value of n is 90। so what we found is a कितने दिन में काम खत्म करेगा और b कितने दिन में काम खत्म करेगा। b will complete the work in how many days? yes, no, देखो रीड करो थोड़ा अच्छे से। b के लिए n है, b के लिए n है, n का वैल्यू क्या मिला है 90। so b will complete the work in 90 days and a will complete the work in how many days?
अब खुशी थोड़ा फ्यूचर में चली गई, खुशी ने अभी इसका आंसर दिया था, दैट इज नथिंग बट 30 days, राइट? ओके, एंड नाउ यू थिंक अबाउट, अगर दोनों को कंबाइन कर दिया, अगर बी और ए को कंबाइन कर दिया जाए, हमने सीखा था कंबाइन कैसे करना है, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर आंसर कैसे मिलेगा, जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे। हाँ यार खुशबू जी, ऐड मत करो, ऐड मत करो। क्या करते हैं हम लोग, ऐड नहीं करना है, सीधा का सीधा ऐड नहीं करते हैं। कैसे करता है, ऊपर आपको करना है मल्टीप्लाई, नीचे करना है ऐड, ठीक है, याद रखेंगे। अब कैसे करेंगे इसको, दिस इज नथिंग बट 90 टाइम्स 30 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 30 इज नथिंग बट 120। अब 3 1 जा 3 4 जा, अगर मुझे 90 डिवाइडेड बाई ये करना है तो सबसे पहले 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड किया तो ये 45 और ये हो गया 2, राइट? और 45 का हाफ करेंगे, 45/2 का मतलब कितना होता है, 45/2 आया ना, 45/2 डिवाइड करके देख लो एक बार, 45 2, सो इट इज 2 जा 4 0 5 नीचे आया तो 5 अगेन 2 जा, so it is nothing but 4, remainder is 1। हमने सीखा था मिक्स फ्रैक्शन, सबसे पहले आंसर लिखने का, फिर रिमाइंडर लिखने का, फिर डिवाइजर लिखने का, so the answer B is correct। ओके, स्नेहा जी के हिसाब से A का वैल्यू 30 कैसे हुआ, so if you see A क्या था, A is nothing but n minus 60, है ना, this is nothing but n minus 60 is nothing but A, या फिर A के लिए आप n/3 भी कर दो तो भी चल जाएगा, है ना, so it is n minus 60, n क्या है 90 है, so n minus 60 कितना हो जाएगा, 90 minus 60 that is nothing but 30। is it fine स्नेहा जी? ओके दैट्स फाइन, सबको ये सॉल्यूशन समझ रहे हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको मिलने वाले हैं। Those who are actually preparing for an examination, I would request, this solution is very lengthy, right? Why I'm going with it, because सबसे पहला काम होता है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बट इससे भी सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। What you can do is, from this line you can write your A by B is same as 3/1, right? And you can see that means if the difference is of 60, what you can think about the time taken by B and time taken by A। ये देखो यहां पर कितना डिफरेंस है, और एक्चुअल ड्यूरेशन का डिफरेंस कितना दिया है, 60 लेस बोला है ना, सो दैट मींस 60 और 2 का डिफरेंस है, सो दैट मींस B विल टेक व्हाट टाइम, 90 टाइम्स लेगा, बिकॉज 2 इज सेम एज 60, देन B will take 30 days and A will take 30 days and B will take 90 days, ठीक है? वो 60 और ये जो डिफरेंस 2 का आ रहा है ना, वो आपको बता रहा है कि वो 60 लेस इज 2 लेस and hence it is going to be 1 part is same as 30, उस तरीके से सोच सकते हैं। but that take an advanced level, जब हम लोग कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, during that time what is considered is we don't write equations। whenever someone is preparing for a higher examination, you are not supposed to think about the equation, you are supposed to think about the relation। हाँ जी राज, I'll just give you a brief idea। ये क्या है, यहां पर मैंने ये बताया कि यहां पे 60 लेस था, and if you see, if A and B are working, then can I say A will do, B will do 2 times work less than A? Is it fine? ये तो समझा ना, बिकॉज वो थ्राइस एफिशिएंट है, दैट मींस ही इज डूइंग 2 times लेसर वर्क। सो यहां पर मुझे 2 times वर्क करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 60 डेज लग रहा है ना, दिस 2 times इज इक्विवेलेंट टू 60, दैट मींस माय A must have taken 30 days to complete the work, and 260 बता रहा है, तो मुझे B के 3 times वर्क खत्म करवाना है, तो 90। But I'll see this again, what I'll do is I'll try to get it more furnished
proved of is, है ना। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ वो 2 और 60 को कनेक्ट करके वहां से वो 30 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस 60 लेस 2 टाइम्स वर्क, दैट मीन्स 1 टाइम वर्क के लिए कितना टाइम लगा रहेगा, 30 डेज लगा रहेगा। बी जो है वो 3 टाइम्स लेस एफिशिएंट है, सो दैट मीन्स उसको 3 टाइम्स ज्यादा टाइम लगना चाहिए। सो 30 से 3 टाइम्स ज्यादा टाइम यानी कि 90 डेज होना चाहिए ना। सो दैट इज माय थॉट प्रोसेस, बट आई थिंक उसको इतना इजीली एक्सप्लेन करने को नहीं होगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट वर्क ऑन इट एंड आई विल गिव यू द रिटर्न गुड प्रूफ इन द व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। मैं इसके एक अच्छा सा प्रूफ लिख के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ, मेरा ये जो थॉट प्रोसेस है ना उसका। ओके, बट मुझे रिमाइंड कराना राज, अगर मैं भूल जाता हूँ ना, बिकॉज मेरी भूलने की शक्ति सबसे ज्यादा है। आई विल डू इट बिकॉज बहुत सारा वो रहता है। दैट्स फाइन, बट लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Okay, well here A does 80% of the work in 20 days. He then call B, they work together and finish remaining work in only 3 days. How long B alone would take it to complete the work? ओके, एक बार अच्छे से क्वेश्चन रीड किया। ऑप्शंस क्या है, 23, 37, 37 and a half and 40 days, है ना। विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, ए टेक 20 days टू कंप्लीट 80% of the work, right? A take to complete 80% of the work. Now ahead information given is कि A plus B दोनों साथ में मिलके कितना दिन काम करते हैं दोनों, हाउ मेनी डेज दे आर वर्किंग टुगेदर। Yes, they are working only for 3 days. And can anybody tell me what amount of the work they completed in this 3 days? इन 3 दिन के अंदर उन्होंने कितना अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट किया होगा? They must have completed the remaining 20% of the work. Now किसी को वो परसेंटेज और फ्रैक्शन याद है क्या? 20% कितना होता है? Uh-huh. 1/4 is 25%. Very good. The correct answer is something, but 1/5 of the work will be completed by that. अगर 20% 1/5 है, so 80% कितना होगा? वेरी गुड। देखो ज्योति फ्यूचर में ही चल रही है, उन्होंने पहले आंसर दे दिया कि सर अब यही पूछेंगे, पहले बता। सो इट इज 4/5 ऑफ द वर्क। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट इक्वेशन, एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि अगर पूरा ही काम करना है, इफ ही हैज टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, तो कितना टाइम लगेगा, है ना। अगर पूरा ही काम कर देना है, सो देखो 20 की जगह पर ही आएगा, ये 5 जो था वो यहां पे डिवाइड कर रहा था, तो सामने जाके मल्टीप्लाई करेगा, और 4 जो है जो ऊपर है वो नीचे चले जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी 5/4, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट 5 5 25। सो A will take 25 days to complete the entire work. Okay, is it fine? Okay, similarly can you tell me A plus B को कितना टाइम लगता है to complete the entire work? की बार काम खत्म करना है, कैन यू टेल मी कितना टाइम लगेगा? वेरी गुड, इट इज नथिंग बट 15 days. ओके, नाउ ओवर हियर अगर सपोज B का पूछा है ना, B has to complete the entire work once. So let me assume it take X days. वो X दिन के अंदर पूरा काम खत्म कर देती है। सो क्या आप मुझे बता सकती हो कि A प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है फिर, है ना। बाय द फॉर्मूला एक के लिए 25 है, एक दूसरे के लिए X है। सो बाय द फॉर्मूला दोनों को कंबाइन करते वक्त क्या करते हैं हम लोग, ऊपर करो मल्टीप्लाई, नीचे करो ऐड, है ना।
25 ए के लिए, बी के लिए x है तो x मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 25 प्लस x। याद रखेंगे राबिया जी, हम लोग a प्लस बी नहीं करना है, यूज करना है। मैंने तो a यहां पर है, b यहां पर है, ठीक है। a के लिए 25 पता था, b के लिए x हमने अज्यूम किया जो पूछा है, करेक्ट। और ये जो ये है, इसका वैल्यू आपको दिख रहा है क्या कहीं? इसका वैल्यू क्या होगा? दिस इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस बी को टोटल कितना टाइम लग रहा है? कैन यू सी स्क्रीन के ऊपर? a प्लस बी को कितना टाइम लग रहा था? इट वॉज 15 डेज। तो यानी कि ये जो मैंने फॉर्मूला से निकाला उसका आंसर होने वाला है 15। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है उस चीज को सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हो जाएगा 25 इंटू एक्स इज सेम एज 15 इंटू 25 प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद सब चीजों को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू एक्स इज 25x इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज नथिंग बट 15 इंटू 20। मुझे टेबल आता है, फिर भी मैं नहीं करूंगा बिकॉज मुझे पता है कि वो कैंसिल होता है, और ये 15x के साथ भी जाएगा तो इट इज 15x। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन ये 15x को इस तरफ लेके, सो इट इज 25x माइनस 15x सेम एज 15 into 25. Now 25 minus 15 is nothing but 10x. अरे रे, फिर भी अपने को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलो आप लोग बहुत अच्छे हो, मेरे लिए मल्टीप्लाई करके दे के रखा है, वेरी गुड, थैंक यू। सो x इज इक्वल टू 15 into 25 divided by 10, thank you, it's nothing but 375 and divided by 2, 10. So that is same as 37.5 and only one option was there, है ना? Yes, 37.5 is the correct answer. Okay. सबको समझा? अब तक क्या चल रहा था, ये भी एफिशिएंसी टाइप प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर ट्वाइस थ्राइस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बोला 80% एफिशिएंट है या फिर 80% काम कर रहा है, वैसा टाइप की चीजें चल रही है। यहाँ पे सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क दिया था, ठीक है, इतना परसेंट ऑफ वर्क हुआ, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे देखा। ओके सर, हाँ जी सर a प्लस बी 15 डेज वो कैसे आया, आप एक बार बता सकते हो? यस, व्हाई नॉट। इफ यू सी वेरी केयरफुली, मैंने ए के लिए क्या किया था, सिंस आई नो, सिंस माय टाइम एंड वर्क आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई कैन डू द थिंग्स दैट आई डू ऑन इक्वल साइड। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 20 का 25 कैसे हो गया, ए के लिए 25 कैसे हुआ कि 5 डिवाइड कर रहा था तो मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई कर रहा था तो डिवाइड। यहाँ पर ये जो 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है तो सामने की जाके मल्टीप्लाई कर देगा, राइट। सो इट इज 3 5 15। इज इट फाइन? समझ गया सर। ओके दैट्स फाइन। नम्रता जी समझा? और 1 तो हमें चाहिए था, तो मैंने 1 को कुछ किया नहीं। ओके दैट्स फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके, ये चाइल्ड 2 वेरिएबल हो जाएंगे। Okay, try to solve this question. I'll give you the time. The next 8 minutes are yours. You have to solve this problem, है ना? And हो सके उतना जल्दी करो, फिर हम लोग साथ में भी डिस्कस कर सकते हैं। I give you some time to think of this.
रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर. सोचेंगे किस तरीके से हो रहा है. Okay. What I should write over here? Oh. This is a copy paste. Riddhi is very smart. Right? She just copy pasted solution from internet. Yeah, thank you, Riddhi. You just reduced my work. Okay, what she has done is actually what I also wanted to say, but we can do in our own method. As I know that in one day, X can complete 1 by 20 of work, but since X is working for 4 alone, so in 4 days, what will happen? In the 4 days, X will complete what amount of the work? Very good, Raj. This is also a good thought process. Very good. It is 4 by 20. That is nothing but 1 by 5th of the work is been completed. Yes, 5% of the work is done on the daily basis, but फिर उस हिसाब से आपको फिर y के बारे में भी सोचना होगा. But over here what I found is initially x ने 1 by 5 of the work already कर चुका है. अब इसके बाद x और y दोनों साथ में आते हैं and they will complete what amount of the work? What work is left at, है ना? After 4 days, what is the amount of the work left? Yes, it is 1 minus 1 by 5 and that is nothing but 4 by 5. ये 5 यहाँ पर multiply 5 minus 1, so it is 1 by 5 of the work. Now ये जो 4 by 5 of the work है, that would be completed by x and y together. अगर suppose मुझे x और y को पूरा काम करवाना है, तो how many days it will take to complete the work? हमारा मेथड क्या बोलता है कि ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे करना है ऐड. So it is going to be what? 20 to 12 divided by 20 plus 12. So that is same as what? That is same as 20 into 12 divided by 32. That is same as, if I can use a table of 4, 4 3s are 4, then it is again 4, so I can use a 4 2s are 4 5s are, so it is 5 15 by 2, that is nothing but 7.5 actually I can take. This 7.5. In 7.5 will complete the entire work. But I don't want them to complete the entire work. I just want them to complete 4 by 5 of the work. So what I do, I just multiply this by 4 by 5. So I need to multiply the same number over here. So what I do is, to make it easy, I just write 15 by 2 only. होने को easy रहेगा, है ना? It is 15 by 2. So यहाँ पर मैंने क्या किया? Multiply किया 4 by 5 से. Since directly proportional है, तो यहाँ पर भी मुझे 4 by 5 से multiply करना है.
So it is 15 by 2 into 4 by 5. It is 5 ones are 5 threes are 2 twos are. So answer is nothing but 6 days. That means the remaining work can be completed by this 3 twos are 6 days. So what is the correct answer? Okay, read the question again. How long did the work last? Total how many days it took सर to ये the... पूरा ड्यूरेशन पूछा है ना? Yes, ये पूरा ड्यूरेशन पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, आफ्टर डूइंग सो मच कैलकुलेशन आई हैव सीन स्टूडेंट्स विल मेक सच मिस्टेक, राइट? इट शुड बी 4+6. थोड़ा ध्यान रखना है कि भले ही मेथड पता था, एक छोटा सा मिस्टेक से जा सकता था. ओके, so I think that's fine. We have seen many different type of a problem today. The thing were very easy as well. थोड़ा difficulty high होगा धीरे धीरे, but I think we have tried to see the easiest possible way in detailed solution. So what we do is, I think we'll stop for now, but still I will not directly give you test. I am thinking to give you some time to go through the material and the problems that we have done, because there might be few students who are unable to get some concept, so they can go through the notes, right? So what I'll do is, I'll just